हाँ जी, गुड आफ्टरनून। लास्ट क्लास ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਵਾਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ज़्यादातर केसेस 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਂਡੋਥਰਮਿਕ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ એનર્ਜੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ੋਥਰਮਿਕ ਹੋਏਗਾ ਉਸ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨੈਗੇਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਹੋਏਗਾ ਉਸ એનર્ਜੀ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਾਈਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਥਰਮੋਡਾਇਨਾਮਿਕਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਰੂਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਛਾ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦੀ એનર્ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ એનર્ਜੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾफ़ੀ ज़्यादा ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ એનર્ਜੀ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਹਾਈ ਮਤਲਬ ज़्यादा, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੀ ਵਰਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਚਾਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ, ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਹੈਜ਼ ਹਾਈਐਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਹੁਣ ਹਾਈਐਸਟ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਈਐਸਟ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ, ਤਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ? ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਲਾਸਟ ਕਲਾਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਫੈਕਟਰਸ ਅਫੈਕਟਿੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨ 'ਚ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਕਾफ़ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਾਈਲੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਿਵ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਹੈ। ਸਕਸੈਸਿਵ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਟਾ ਲਿਆ, ਕੈਟਾਇਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਟਾ ਲਿਆ, +2 ਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਤੀਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹਟਾ ਲਿਆ, +3 ਚਾਰਜ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਅਗਰ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕਸੈਸਿਵ ਆਇਓਨਾਈਜੇਸ਼ਨ એનર્ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਕਸੈਸਿਵ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਚੱਕਿਆ ਨਿਊਟਰਲ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ -1 ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ -2 ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਹੋਏਗਾ -3 ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਵਾਈਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੋਂ। ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖ ਲਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ, ਸਕਸੈਸਿਵ electron gain enthalpy. Successive electron gain enthalpy. ठीक है, इस लिखो। the addition of more than one electrons, the addition of more than one electrons in a atom, in an atom, the addition of more than one electrons in an atom, ठीक है, in successive steps, in successive steps, successive ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। in successive steps is known as successive या are known as successive electron gain enthalpies, are known as successive electron gain enthalpies। ठीक है, मैं कोई एक सिंगल एलिमेंट लेके चलता, मान लो मेरे को कोई एलिमेंट है ए गैस, है ना, या तो ना सिंगल होना चाहिए और गैस फेस होना चाहिए। इन्हें एक इलैक्ट्रॉन ऐड किया, एक ही बन जाएगा, ये बन जाएगा ए माइनस गैस के अंदर, पेन चेंज कर लिए, ये बन जाएगा ए माइनस
गैस के अंदर, क्योंकि जो इलैक्ट्रॉन ऐड आएगा माइनस चार्ज आ जाएगा। आ जी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, इनू कहते हैं डेल्टा एच ई जी, और ये पैर च लिखा होंगे 1। ठीक है, यानी कि यह है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले वाली, जो पहला इलैक्ट्रॉन आपने ऐड किया। ठीक है, हुण मैं एक होर इलैक्ट्रॉन ऐड करना है, तो जिहड़ा ए माइनस है इन्हें इलैक्ट्रॉन ऐड किया, ये आ जाएगा A2 माइनस गैस, इनू बोलिया जाएगा डेल्टा एच ई जी 2। अच्छा, अगर एक होर ऐड कर दें तो डेल्टा एच ई जी 3, तो इस तरह नाल चलता जाएगा, डेल्टा एच ई जी 1 2 3 इस तरह नाल चलता जाएगा। ठीक है, हुण ना इस च खास गल की है, देखो जिहड़ा पहला इलैक्ट्रॉन ऐड करना है ना, जिहड़ी यानी कि हमेशा कोई भी एलीमेंट है रैंडम, जिहड़ा पहला इलैक्ट्रॉन ऐड करना है, तो पहला इलैक्ट्रॉन ऐड करने के टाइम जिवें मैं लास्ट क्लास भी दस्सिया सी भी कुछ केसिस होंगे हैं जिहदे एनर्जी रिलीज़ होंदी है, यानी कि डेल्टा एच ई जी नैगेटिव होंदा है। कुछ केसिस होंगे जिस एनर्जी अब्जॉर्ब होंदी है, यानी कि डेल्टा एच ई जी पॉजिटिव होंदा है। बट जदों एक इलैक्ट्रॉन ऐड हो गया, जिहड़ा दूजा इलैक्ट्रॉन ऐड करना है, ये जिहड़ा मर्जी एलीमेंट चक लो, ये हमेशा एब्जॉर्ब वाली एनर्जी होएगी, यानी कि डेल्टा एच ई जी 2 है जिहड़ा, या ई जी ई 2 है जिहड़ा, दूजे वाले केस से जी एनर्जी होएगी वो हमेशा ही एब्जॉर्ब होएगी, मतलब वह साइन हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। हुण एवें क्यों होया, देखो किसी एलीमेंट ने इलैक्ट्रॉन गेन कर लिया, वो माइनस चार्ज आ गया। हुण क्या माइनस जिहदे ऑलरेडी खुद से माइनस है, क्या वो इलैक्ट्रॉन ऐड करेगा? सोच के देखो, क्या माइनस माइनस च जुड़ेगा आपस च? नहीं ना। माइनस माइनस की करते हैं, माइनस माइनस एक दूजे को रिपैल करते हैं। तो जिहड़ा ए माइनस है, इस नवा इलैक्ट्रॉन ऐड करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है ना, तो उस एनर्जी रिलीज़ नहीं होंगी, उस सगों एनर्जी लगती है। ये काम धक्के नाल करवाया जा रहा है, ये काम होना नहीं चाहिए। ये जिदे ते पहले ही माइनस है, उस नवी माइनस वाली चीज़ जुड़ेगी नहीं। तो जिहड़ा डेल्टा एच ई जी 2 होंदा है, ये हमेशा ही एब्जॉर्ब होंदा है, जिहड़ा मर्जी एलीमेंट होवे। जिहड़ा डेल्टा एच ई जी 1 होंदा है, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फस्ट, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नैगेटिव भी हो सकती है। यानी गल समझ आ रही है ना? ठीक है, तो ये एक पॉइंट लिख लो फटाफट, आप पहला एग्जाम्पल लिख लो नाल नाल, फिर मैं कुछ पॉइंट्स लिखवाना। ठीक है, जल्दी जल्दी पॉइंट्स लिखो। पॉइंट्स ये ने कि फर्स्ट इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, फर्स्ट इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, ये अलग अलग केसेस अलग अलग है, भावें ब्रैकेट च भी लिख ले सकते हो भी, नैगेटिव फॉर मोस्ट केसेस, ज़्यादातर केसेस एनर्जी रिलीज़ ही होंगी है। फर्स्ट इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, ज़्यादातर केसेस नेगेटिव होंगी है। बट नाल ही अगला पॉइंट लिख लो, सेकेंड इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि जिहदे माइनस है ना, वो माइनस वाला माइनस इलैक्ट्रॉन ऐड थोड़ी करेगा, माइनस वाला तो खुद इलैक्ट्रॉन एक्सट्रा रखी बैठा है। ठीक है ना, तो जो दूजा इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होंदा ना, जिहड़ा मर्जी एलीमेंट हो जाए, चाहे वो इलैक्ट्रॉन गेन करने तो बाद स्टेबल बन रहा हो, कुछ भी हो रहा हो, दूजी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है ना, वो हर एक एलीमेंट की हमेशा पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, कई बार तुहानूं एग्जामिनर एवें दा केस दे देगा, जिवें ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन से जो दूजा इलैक्ट्रॉन जुड़ता है ना, ऑक्सीजन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बन जाती है। तो तुहानूं एग्जामिनर कहेगा कि दसो जी, ये दूजा इलैक्ट्रॉन ऐड होने ते एनर्जी रिलीज़ होएगी या अब्जॉर्ब होएगी। आप सोचते हैं भी यार दूजा इलैक्ट्रॉन ऐड होने ते नोबल गैस बन जाएगा, तो यह तो बहुत वधिया चीज़ है। तो आप कहने भी हाँ, जिद्दां मैं कहा सीगा भी जिस इलैक्ट्रॉन आराम नाल ऐड हो रहा वो हमेशा एनर्जी रिलीज़ करेगा। ठीक है, तो आप सोचते हैं दूजा इलैक्ट्रॉन ऐड करके वो नोबल गैस बन रहे, तो काफ़ी एनर्जी रिलीज़ होनी चाहिए है, पर एवें का कुछ नहीं है। जो पहला इलैक्ट्रॉन ऐड हो गया वो माइनस बन गया, हुण वो माइनस एक माइनस को अट्रैक्ट नहीं करेगा, तो यह काम धक्के नाल ही करवाया जाएगा हमेशा। यानी गल समझ आ रही है? ठीक है, एना पार्ट समझ आ रहा है ना? ठीक है, तो सेकेंड इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव होंगी है। जी फर्स्ट इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ये पॉजिटिव नैगेटिव कुछ भी हो सकती है, ज़्यादातर केसेस से नैगेटिव होंगी है, बहुत थोड़े केसेस से फर्स्ट वाली पॉजिटिव हो सकती है। ठीक है, आ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेकेंड इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये मेरी एक्सप्लेनेशन लिख लो, नैक्सट लाइन लिखो, दिस इज बिकॉज some extra energy is required. This is because some extra energy is required
to add an electron, this is because some extra energy is required to add an electron in already negative ion, in already negative आयन, ਜਿਹੜੇ आयन ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ એનર્ਜੀ ਫालतू ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। already negative ion, due to this second electron gain enthalpy is always positive, due to this second electron gain enthalpy is always positive। कर दोगे भी इन्ना का काम, ठीक है। दूजी इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमेशा पॉजिटिव है, पहले वाली पॉजिटिव नैगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, ये अंदर कुछ खास गल्लां दा ध्यान रखना है, नोट एक दो नोट इंपॉर्टेंट चीज़ां लिख लैने आपां, ठीक है, नोट लिख लो। हुण जिवें मैं कह रहा भी पहली इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादातर दी नैगेटिव होंदी है, तो पॉजिटिव वाले किहड़े हैं आपां वो जरूर याद रख सकते हैं, ठीक है। हुण नोट्स सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नोट लिखो। एक गल सोचो, एवें दा किहड़ा ग्रुप है जिन्हों किसी भी इलैक्ट्रॉन की जरूरत ही नहीं है? नोबल गैसेस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी फुली फिल्ड है, ऑलरेडी बहुत स्टेबल है। तो नोबल गैसेस एक इदां दा ग्रुप है, इको नहीं, एक इदां दा ग्रुप है जिस इलैक्ट्रॉन ऐड करन लई बहुत एनर्जी लगती है, तो वही भी एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। नोबल गैसेस की इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पहले वाली भी पॉजिटिव है, दूजे वाली तो होएगी ही पॉजिटिव, ठीक है। तो यह भी लिखो पहले नोट नंबर पहला, as noble gases are already stable, as noble gases are already stable, therefore their electron gain enthalpy is positive, as noble gases are already stable, therefore their electron gain enthalpy is positive। second part। अच्छा, अगर पूरे पीरियोडिक टेबल में देखा जाए, किहड़ा इहो जिहा ग्रुप है जिन्होंने इलैक्ट्रॉन गेन करने च सब तो ज़्यादा फायदा होंदा है? ग्रुप नंबर 17, क्योंकि जो ग्रुप नंबर 17 एक इलैक्ट्रॉन ऐड कर लेगा, और ग्रुप नंबर 18 वर्गा यानी कि नोबल गैसेस वर्गा बन जाएगा, है ना। और मैं दस्या ना, जिन्ना आराम नाल इलैक्ट्रॉन ऐड होएगा उन्नी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होएगी, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 17 यानी कि हैलोजन्स, उन्हों की इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब तो ज़्यादा रहिंदी है पूरे पीरियोडिक टेबल च, सब तो ज़्यादा नैगेटिव, समझ गए ना। सब तो ज़्यादा नैगेटिव मतलब रिलीज़ होती है। तो यह भी एक सेकेंड पॉइंट लिख लो, ठीक है। एज हैलोजेंस नीड ओनली वन इलैक्ट्रॉन, एज हैलोजेंस नीड ओनली वन इलैक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगरेशन, as halogens need only one electron to attain noble gas configuration, therefore their electron therefore they have highest negative electron gain enthalpy, therefore they have ग्रुप 17 की इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब तो ज़्यादा नैगेटिव होंदी है, रिलीज़ होंदी है, therefore they have highest negative electron gain enthalpy, ठीक है। तीजा पॉइंट लिखो, तीजा पॉइंट। अच्छा, हुण ना फ्लोरीन और क्लोरीन की गल करते हैं, ठीक है, या वैसे ही ग्रुप नंबर 17 की गल करते हैं। अगर टॉप टू बॉटम जावांगे, ये कल आप डिस्कस किया सी, अगर टॉप टू बॉटम जावांगे साइज़ वधूगा तो इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी घटूगी, यही गल करी सी ना। तो जोड़े टॉप वाले एलीमेंट ने उन्होंने इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सब तो ज़्यादा होनी चाहिए है, सब तो ज़्यादा नैगेटिव होनी चाहिए, जिमें कि फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए है क्लोरीन नालों, क्योंकि फ्लोरीन टॉप पर है, साइज़ छोटा है, ज़्यादा अट्रैक्शन शो करता इलैक्ट्रॉन को, है ना। या ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए है सल्फर नालों, ऑक्सीजन ऊपर है, सल्फर नीचे है, ठीक है। पर इत्थे एक एक्सैप्शनल केस है। एक्सैप्शन की है, आप कहने हैं जी फ्लोरीन छोटा है तो इलैक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रोंगली अट्रैक्ट करेगा, तो वही इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होएगी, पर फ्लोरीन कुछ ज़्यादा ही छोटा है, समझे ना। कुछ ज़्यादा ही छोटा की होएगा, तो यह मतलब जो इलैक्ट्रॉन वो वाल आ रहा है, फ्लोरीन की कर रहा है, जो इलैक्ट्रॉन वो वाल आ रहा होंगे उन्होंने ही रिपल्शन करन लग जाता है,
क्योंकि ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਉਹ 'ਚ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਪਏ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਫਲੋਰੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਜਿਕ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਲੋਰੀਨ, ਆਕਸੀਜਨ ਇੱਥੇ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਛੋਟੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਐਡ ਕਰਨਾ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਲਿਖੋ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਸਮਾਲ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਫਲੋਰੀਨ, due to exceptionally small size of fluorine, comma, the inner electrons of fluorine, due to exceptionally small size of fluorine, comma, the inner electrons of fluorine repel the incoming electron. The inner electrons of fluorine repel the incoming electrons, due to which the electron gain enthalpy of fluorine is less than chlorine, is less negative, negative ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੋ, negative ਦਾ ਮਤਲਬ release, due to which the electron gain enthalpy of fluorine is less negative than chlorine. ਇਹ ਕੁਝ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਓ। ਡਿਊ ਟੂ ਵਿਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਫ ਫਲੋਰੀਨ ਇਜ਼ ਲੈਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੈਨ ਕਲੋਰੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਯਾਰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇਬਲ ਵਾਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋਬਲ ਗੈਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਿਆ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਨੰਬਰ 2 ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਆਰਬਿਟਲਸ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। S2 ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, S ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲਸ ਫੁੱਲੀ ਫਿਲਡ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ P ਆਰਬਿਟਲ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਐਂਥੈਲਪੀ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ੀਰੋ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ 'ਚ ਹੀ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ। ਠੀਕ ਹੈ। ਡਿਊ ਟੂ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲੀ ਨਾ ਲਿਖੋ, ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਫ ਫਿਲਡ ਸਟੇਬਲ ਕੌਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ, due to half filled stable configuration of nitrogen, comma, its electron gain enthalpy is almost zero, ब्रैकेट च लिख लो पॉजिटिव, पॉजिटिव ही होंगी है वैसे, ड्यू टू विच its electron gain enthalpy is almost zero. ठीक है जी, इन्ना पार्ट समझ आ रहा है। अच्छा, क्या नाइट्रोजन तो बिना कोई होर भी स्टेबल होंगे? ग्रुप नंबर 2 तो बेरीलियम और कार्बन की भी होंगी है। ठीक है। अच्छा चलो, हुण इन्ना पोर्शन सीगा जिहड़ा इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सीगी अपनी। ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स ने, एक आयनाइजेशन एंथैल्पी, एक इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, बिल्कुल एक दूजे तो उल्टा चलते हैं। ठीक है। आप ये एक दो क्वेश्चनस करते हैं, फिर आप नवे टॉपिक वाल मूव करते हैं। क्वेश्चन लिख लो, थोड़ी जी प्रैक्टिस कर लीए। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह, कंपेयर डेल्टा H इलैक्ट्रॉन गेन। देखते हैं कि इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है या घट है। आप नैगेटिव वाले रिलीज़ वाले मामले ले रहे हैं हाले। पहला केस ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है। ऑक्सीजन तो फ्लोरीन के विचों किहदे इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है? हुण सोचो, ऑक्सीजन ग्रुप 16 का एलीमेंट है, फ्लोरीन ग्रुप 17 का एलीमेंट है। फ्लोरीन वाला और हैगे दोनों सेम पीरीयड च ने। ठीक है। फ्लोरीन वाला एक इलैक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस बन जाएगा, तो यदि इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी काफ़ी ज़्यादा है। ऑक्सीजन वाला 2 इलैक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस बनेगा,
ਤਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਲੋਰੀਨ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਕਰੇਗਾ ਉਨੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਨ ਅ ਪੀਰੀਅਡ ਲੈਫਟ ਟੂ ਰਾਈਟ ਸਾਈਜ਼ ਘਟਦਾ ਹੈ, ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਬਿਕਮਸ ਮੋਰ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੋਚ ਲਓ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਲੋਰੀਨ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, 16 17 ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੋਚ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਫਲੋਰੀਨ ਆਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਲੋਰੀਨ ਔਰ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਲੌਜੀਕਲੀ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਆਂਸਰ ਲਾਏਗਾ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵਾਲਾ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਗੇਨ ਇੰਥੈਲਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਲੋਰੀਨ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਫਟਾਫਟ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਚਲੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੋ। Which of the following element will have a higher negative electron gain enthalpy? Which of the following element will have a higher negative electron gain enthalpy? हायर ज़्यादा, नेगेटिव मतलब रिलीज़। तो अगेन सेम कॉन्सैप्ट, ठीक है, कि किहड़ा ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा, जिहड़ा इलैक्ट्रॉन आराम नाल ऐड कर लेगा वही। आप ऑप्शनस देखते हैं, इहदे अंदर 4 ऑप्शनस दिए हुए ने। ए हैगा नियॉन 3s2 3p3, बी हैगा नियॉन 3s2 3p4, सी हैगा नियॉन 3s2 3p5 और डी हैगा नियॉन 3s2 3p6। पॉज करके एक बार ट्राई करने की कोशिश करो किवें करना है। हाईएस्ट नैगेटिव या हायर नैगेटिव, हाईएस्ट आएगा, वैसे इतने 4 दे विचों तो एक होएगा हाईएस्ट नैगेटिव, ठीक है। देखो माड़ा जा हाईएस्ट नैगेटिव किवें लभणी हुंदी है, जिस इलैक्ट्रॉन ऐड करना सब तो ईजी है। सारे ही तीजे शैल च ने, है ना, थर्ड शैल है, थर्ड शैल है, थर्ड शैल है, थर्ड शैल है, ठीक है। देखो जो 3p3 है तो हाफ फिल्ड पी है, ये तो ऑलरेडी स्टेबल है, तो ये तो इलैक्ट्रॉन की लोड़ ही नहीं है। जोड़ा 3p6 है ये फुली फिल्ड है, ये भी ऑलरेडी स्टेबल है। तो जिन्होंने इलैक्ट्रॉन की लोड़ ही नहीं होंगी वो इलैक्ट्रॉन ऐड करके एनर्जी क्यों रिलीज़ करेंगे, तो ए तो डी तो नहीं हो सकते। हुण आ 3p4 है, आ 3p5 है। सिंपल जी गल सोच के देखो कि इलैक्ट्रॉन गेन करने फायदा होएगा। अगर आ गेन करेगा 3p4 वाला, ये बन जाएगा 3p5। अगर 3p5 वाला गेन करेगा ये बन जाएगा 3p6 फुली फिल्ड पी। तो साफ पता लग रहा है ना कि जोड़ा सी है ये अंदर एक इलैक्ट्रॉन गेन करके ये स्टेबल कॉन्फिगरेशन बन जाती है। तो सी नूं इलैक्ट्रॉन गेन करने का सब तो वध बेनीफिट है, सब तो वध बेनीफिट मतलब ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होएगी। आंसर आ गया सी। हाईएस्ट नैगेटिव मतलब ज़्यादा रिलीज़ होएगी, सिंपल जी गल। अगर मान लो नैगेटिव नहीं भी लिखा होंदा, हाईएस्ट लिखा होंदा, फिर भी सिंपल जा फंडा है, जिहदे च इलैक्ट्रॉन ऐड करके फायदा मिल रहा है सिस्टम को, वो इलैक्ट्रॉन को ऐड करेगा, सब तो ज़्यादा एनर्जी वो गेस च आएगी। खत्म क्वेश्चन। नोट करो जल्दी जल्दी। कर लिया जी, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो। लियाओ लास्ट क्वेश्चन वाल चलते हैं, ठीक है। चलो लिखो माड़ा जा, थोड़ा जिहा इहदे चों न्यूमेरिकल भी आ जाता है, इन्ना खास न्यूमेरिकल नहीं है बट आ सकते। लिखो माड़ा जा क्वेश्चन की है, द इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, द इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी of chlorine, the electron gain enthalpy of chlorine is 349 kilojoule per mole, ठीक है।
The electron gain enthalpy of chlorine is 349 kilojoule per mole. Calculate energy released. Calculate energy released when 1 gram of chlorine is converted to Cl negative ion. Calculate energy released when 1 gram of chlorine is converted to Cl negative ion. ध्यान नाल देखो क्वेश्चन किवें करना है, मैं करवाना। देखो कहना इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज N 349 किलोजूल पर मोल। ठीक है, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी याद है ना कि क्लोरीन है जिहड़ा गैस फॉर्म च इन्हें इलैक्ट्रॉन गेन करया होएगा, इलैक्ट्रॉन गेन करके Cl माइनस बन गया होएगा और इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इस ये पूरे प्रोसैस के अंदर जिहड़ी एनर्जी है वो हैगी है 349 किलोजूल पर मोल। ये पर मोल सब तो जरूरी चीज़ है इस क्वेश्चन के हिसाब नाल। पर मोल का मतलब की है भी जिहड़ा आह क्लोरीन है जिस इलैक्ट्रॉन आप ऐड कर रहे हैं ये 1 मोल है, एक क्लोरीन 1 मोल है। अच्छा, ये मोल हो गए जी 1। क्या होंदा फॉर्मूला मोल का फॉर्मूला होंदा वेट बाय मोलर मास। चलो देखते हैं 1 इक्वल टू वेट बाय क्लोरीन का मोलर मास होंदा 35.5 तो वेट आ गया 35.5 इधर चला गया 35.5 ग्राम। इसका मतलब आ जी वैल्यू दती हुई है 349 किलोजूल पर मोल, ये क्लोरीन 35.5 ग्राम है। हुण क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन कहना एनर्जी रिलीज दसो जे क्लोरीन 1 ग्राम होंदा। ठीक है ना, मेरे को क्लोरीन है 35.5 ग्राम। कहना जी 1 ग्राम होंदा फिर कितनी एनर्जी रिलीज होंदी, यूनिटरी मैथड लग जाएगा। देखो वैन Cl is 35.5 ग्राम then delta HEG is 349 किलोजूल। सही है ना। अच्छा, अगर क्लोरीन 1 ग्राम होंदा वैन क्लोरीन इज 1 ग्राम then डेल्टा HEG, हाँ जी किवें करते हैं, अगर इन्हू 1 बनाना तो सारी चीज़ नीचे डिवाइड हो जाएगी, कितना आ जाएगा 349 किलोजूल बाय 35.5। जे इनू सॉल्व करते हैं कितनी वैल्यू आती है जी 9.83 किलोजूल। आंसर आ गया मेरा 9.83 किलोजूल। गल समझ आई कि नहीं आई। इनू इदा लिख लो, डेल्टा HEG ना लिखो, दैन एनर्जी चेंज लिख लो, दैन एनर्जी चेंज है 349 और अगर 1 ग्राम होंदा तो एनर्जी चेंज कितना आंदा, सिंपली यूनिटरी मैथड लाया 10 पेन 100 रुपये देने, 1 पेन किन्ने का होएगा, बिल्कुल वही है। 35.5 ग्राम च इन्नी एनर्जी है, 1 ग्राम च कितनी होएगी तो 35.5 को नीचे डिवाइड करता, 1 ग्राम की एनर्जी आ गई। आ मेरा फाइनल आंसर है। ये सेम इस तरह का क्वेश्चन थोनों आयनाइजेशन एनर्जी च भी मिल जाता है। थोड़ा जो भी वेट वगैरह का क्वेश्चन आएगा तुसी मोल वाल ध्यान देना भी, हाँ जी 349 किलोजूल पर मोल। पर मोल का मतलब होंदा है मोल है 1 मोल, पर मोल का मतलब 1 मोल है ना। पर हैड का मतलब 1 सिंगल परसन है ना, तो पर मोल का मतलब 1 मोल। 1 मोल रखिया, क्वेश्चन करिया, फटाफट इनू नोट करो। इस तरह के क्वेश्चन भी तुहानू शीट्स के अंदर मिलणगे जल्दी जल्दी। वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, टाइम बचेगा। ठीक है, हुण इहदे आपां इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे टाइप्स इन्ने ही करने ने। सीधा आपां तीसरे पार्ट वाल चलते हैं। फोर्थ हो गया सॉरी, एक अपने रेडियस पढ़ लिया, एक अपने आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड पढ़ लिया, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ट्रेंड पढ़ लिया। फोर्थ आ जाएगा फोर्थ ट्रेंड। फोर्थ लिखो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कई चैप्टर च ऑर्गैनिक च रिडॉक्स च बहुत काम आएगी। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। इलैक्ट्रोनैगेटिव का मतलब क्या होंदा है, हाले मैं रफ च बना रहा तो नोट ना करियो, सिर्फ समझो। तुसीं सारिਆਂ ने 10th च पढ़िया होएगा ना, कोवलेंट बॉन्ड नाम की एक चीज़ होंदी है। कोवलेंट बॉन्ड किवें बनदी सीगी भी, एक एलीमेंट ने एक इलैक्ट्रॉन शेयर किया, दूजे ने अपना इलैक्ट्रॉन शेयर किया, शेयरिंग ऑफ इलैक्ट्रॉन के नाल जिहड़ी बॉन्ड बन गई, इनू असीं कोवलेंट बॉन्ड कहंदे हुंदे सीगे। सारिਆਂ ने पढ़िया होएगा। मैं जिवें एक एग्जाम्पल दिना, H ने एक इलैक्ट्रॉन शेयर किया, Cl ने एक इलैक्ट्रॉन शेयर किया,
आ जिहड़ी बॉन्ड बनी, ठीक है, आ जिहड़ी बॉन्ड बनी शेयरिंग वाली, इहनूं कह दिंदे ने कोवलेंट बॉन्ड। सही है ना। हुण मान लो मेरे को कोई कोवलेंट बॉन्ड है ए और बी दे अंदर, इत्थे कोवलेंट बॉन्ड दे दो इलैक्ट्रॉन पए ने, एक इलैक्ट्रॉन ए दा एक इलैक्ट्रॉन बी दा। हुण ना देखो इत्थे ए दा भी न्यूक्लीअस, इहदे होर इलैक्ट्रॉन होणगे, बी दा भी न्यूक्लीअस और इहदे अपने इलैक्ट्रॉन होणगे। हुण हुंदा की है, ए और बी चीज़ां तां अलग अलग ही ने, ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਰਹਿੰਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਬੀ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖਿੱਚ ਲੇਗਾ, ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੌਂਡ ਹੀ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਏ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ, ਬੀ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਚਾਰਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਦੋਨੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। बॉन्ड है, इलैक्ट्रॉन बी के नेड़े हो गए, हले भी बॉन्ड बनी हुई है, हले भी दोनों कोई किसी ते कोई वो नहीं है, पर जो बी के नेड़े इलैक्ट्रॉन हो गए, ठीक है, बी के उत्ते हल्का जा नैगेटिव चार्ज बनेगा। हुण इहनूं मैं -1 नहीं लिख सकता, -1 उदों चार्ज आता हुंदा जदों पूरे का पूरा इलैक्ट्रॉन बी कोल आ जाए। इलैक्ट्रॉन थोड़ी आए ने, तो नेड़े हुए ने, टुट के थोड़ी आ गए इलैक्ट्रॉन, तो इहनूं मैं पार्शल नैगेटिव, छोटा जा नैगेटिव। अच्छा, ए तो इलैक्ट्रॉन दूर हो गए, तो ये उत्ते पार्शल पॉजिटिव, छोटा जिहा पॉजिटिव चार्ज एक बनता है। इन्नी गल समझ आई ना। हुण इत्थे मैं कहूँगा कि जिहड़ा बी है, बी ने अपने न्यूक्लीअस फोर्स लगा के इलैक्ट्रॉन्स नूं अपने नेड़े कर लिया, दिस इज़ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी। मैं कहूँगा बी इज़ मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव, ए इज़ लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव। ठीक है ना। तो अगर मैं इलैक्ट्रोनैगेटिविटी की डेफिनेशन लिखनी होवे की होगा कि जी एक बॉन्ड बन गई, एक बॉन्ड बनन तो बाद ਜਿਹੜੇ शेयर होए इलैक्ट्रॉन्स ने, इन्हां नूं अपने वाल खिੱਚਣ ਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ है ਜਿਹੜੀ, ਉਹਨੂੰ इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਦੀ ਟੈਂਡੈਂਸੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੈਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿविटी ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਗੱਲ समझ आ रही है ना। ठीक है, इन्ना पता लग गया। चलो पहला आप इलैक्ट्रोनैगेटिविटी डेफिनेशन लिखते हैं। आ कुछ नहीं लिखने की जरूरत हैगी, इलैक्ट्रोनैगेटिविटी सीधी डेफिनेशन लिखो। द टेंडेंसी ऑफ एन एटम, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट, द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट shared pair of electrons, share किए हुए electrons, the tendency of an atom to attract shared pair of electrons toward itself, towards itself in a covalent bond, towards itself in a covalent bond is known as electronegativity. In a covalent bond is known as electronegativity। ठीक है। हुण उपर वाला HCl वाला पार्ट छड्ड के सिर्फ इन्ना बनाओ, आ कोवलेंट बॉन्ड इन्हां च बन गई। याद है ना, इस तरह ना बना दिंदे सी कोवलेंट बॉन्ड नूं, ये तुसीं 10th च बनाया ही होना। पर बी इलैक्ट्रॉन नूं थोड़ा जिहा अपने वाल खिंच रहे, तो कोवलेंट बॉन्ड थोड़ी जी बी वाल नूं शिफ्ट होई हुई है, इलैक्ट्रॉन क्लाउड थोड़ा जिहा बी वाल नूं शिफ्ट होया होया। तो बी ते पार्शल नैगेटिव, ए ते पार्शल पॉजिटिव, आ दोनों चीज़ें बनाओ फटाफट। तो इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ना एक तरह का कंपीटीशन है दो चीज़ों च, भी किहड़ा शेयर होए इलैक्ट्रॉन नूं अपने नेड़े वाल नूं खिंचेगा, ये कंपीटीशन इलैक्ट्रोनैगेटिविटी है। ठीक है। जिहदे वाल नूं इलैक्ट्रॉन जाणगे वो मोर इलैक्ट्रोनैगेटिव, जिहदे तो दूर इलैक्ट्रॉन जाणगे लैस इलैक्ट्रोनैगेटिव। जिहदे वाल नूं इलैक्ट्रॉन जाणगे ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਣਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਨੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਨਿਊਕਲੀਅਸ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਲੋਜਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋਜਨਸ ਦਾ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੈਲੋਜਨਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ। ਔਰ ਹੈਲੋਜਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰਾਈਡ, ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰੀਨ है टॉप वाला हैलोजन,
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਲੋਰੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਲਾ ਦਿਓ, ਫਲੋਰੀਨ ਉਹ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੇਗਾ ਤੇ ਫਲੋਰੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟ ਆਉਂਦਾ ਫਲੋਰੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਆਕਸੀਜਨ। ਹੁਣ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਪਰ ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾ ਦਿਓ ਕੋਵਲੈਂਟ ਬੌਂਡ 'ਚ, ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਫਲੋਰੀਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਆਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਜਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਸ਼ਲ ਚਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਈਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਫਲੋਰੀਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਟਾਫਟ ਲਿਖੋ। ਫਲੋਰੀਨ हैज़ द, ये फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉलोड बाय नाइट्रोजन, फॉलोड बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फॉलोड बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अगर देखा जाए इलैक्ट्रोनैगेटिविटी ऑर्डर ए वाला हुंदा है EN ऑर्डर। की हुंदा है, फ्लोराइड की सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिविटी, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन। ये अप्रोक्सीमेटली बराबर हुंदी है क्लोराइड दे। ठीक है। पहला 3-4 ही याद कर लो, हले मैं थोड़ा एक पूरी सीरीज़ भी लिखा दूंगा। फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोराइड, आ 4 याद रखने ने। इन्हां दी इलैक्ट्रोनैगेटिविटी पूरे पीरियोडिक टेबल 'च सब तो ज़्यादा है। ठीक है। हुण जिहड़ा सब तो ज़्यादा इलैक्ट्रोनैगेटिव है वो तो जिहदे मर्जी नाल ला दो, तो हमेशा पार्शल नैगेटिव चार्ज ही आएगा। तो इत्थे लिख भी लो, ऑलवेज शो नैगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नैगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीजन दे नाल लिख लो, 2 पॉइंट्स लिख लो, शो नैगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, only shows positive oxidation state, positive oxidation state against fluorine। ठीक है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नैगेटिव होंदी है, सिर्फ फ्लोरीन के सामने पॉजिटिव होंदी है। ये एग्जाम्पल भी लिख लो, भावें OF2, O2F2, ये 2 कंपाउंड्स ने जिहदे अंदर ऑक्सीजन ते नैगेटिव चार्ज है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज है। जल्दी जल्दी लिख लो। ठीक है। हुण जिवें आह वाला क्वेश्चन बहुत आंदा, जिहड़ा हुण लिखा रहे, क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सैप्ट है। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सेंटर च लाइन खिंच के लैफ्ट से लिखांगे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, राइट से लिखांगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। करिए कंपेयर इन्हों। पहला पॉइंट, ठीक है, इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। याद है इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की होंदा है, जदों कोई कल्ला एटम इलैक्ट्रॉन नूं अपने च जोड़े। इलैक्ट्रोनैगेटिविटी होंदा है, बॉन्ड बन चुकी है, शेयरिंग हो चुकी है, शेयरिंग दे विचों जिहड़ा न्यूक्लीयस अपने नेड़े इलैक्ट्रॉन करे। बहुत फर्क है दोनों च, है ना। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी साइड लिखो, टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटेड एटम टू अट्रैक्ट इलैक्ट्रॉन। इलैक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दे नाल लिखो, टेंडेंसी ऑफ आइसोलेटेड एटम टू अट्रैक्ट इलैक्ट्रॉन।
isolated atom to attract electron. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली साइड लिखो, टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन कंबाइंड फॉर्म, tendency of an atom in combined form to attract shared pair of electron. Tendency of an atom in combined form to attract shared pair of electron. Shared pair of electron. अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली साइड लिखो, it is property of isolated atom. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली साइड, it is property of isolated atom. दूसरी साइड लिखो, it is property of bonded atom. It is property of bonded atom. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाली साइड लिखो, इट हैज़ यूनिट्स ऑफ किलो जाउल पर मोल. इट हैज़ यूनिट्स ऑफ किलो जाउल पर मोल. इलेक्ट्रोनैगेटिविटी च लिखो. हुण इलेक्ट्रोनैगेटिविटी की है यार, भी कौन इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਈ यूनिट्स थोड़ी होने चाहिए ने. कौन ताकतवर है जी, आ फलाना बंदा ताकतवर है, ਇਹਦੇ ਕੋਈ यूनिट्स थोड़ी ने. अपने तो बस दसता भी हाँ यार ये कोल जा रहा सारा कुछ, तो ये कोई यूनिट्स नहीं होंगे इलेक्ट्रोनैगेटिविटी दे. इलेक्ट्रोनैगेटिविटी लिख लो, इट हैज़ नो यूनिट्स, इट हैज़ नो यूनिट्स. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी च लिखो, इट्स वैल्यू द इलेक्ट्रॉन लिखो, फॉर एन एटम, for an atom it is constant. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसी भी एटम की अपनी अपनी कॉन्सटेंट होंगी है. मतलब ये नहीं है कि तुसी फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अज चैक करी कुछ हो रहा है, कल चैक करी कुछ हो रहा है. फ्लोरीन कितों होर लिया वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी अलग है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की फिक्स रहेगी, कॉन्सटेंट रहेगी. तो द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फॉर एन एटम इज कॉन्सटेंट. जी इलेक्ट्रोनैगेटिविटी है ना, वो कई चीज़ों पर डिपेंड करती है. किसी की हुण जिवें नाइट्रोजन ही है, जे नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड्स बनाई होण, सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड तो पता ही होना ना, जे नाइट्रोजन ने सिंगल बॉन्ड बनाई होवे तो उसकी इलेक्ट्रोनैगेटिविटी घट होंदी है, उसका न्यूक्लीयस इन्ना स्ट्रोंग नहीं होंदा. जे नाइट्रोजन ने डबल बॉन्ड बनाई होवे उसकी इलेक्ट्रोनैगेटिविटी वध जाती है. जे नाइट्रोजन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाई होवे उसकी इलेक्ट्रोनैगेटिविटी होर वध जाती है. तो इलेक्ट्रोनैगेटिविटी चेंज होंदी रहिंदी है बॉन्डिंग के हिसाब नाल. अगला चैप्टर कैमिकल बॉन्डिंग उच्च आप ये चीज़ा बहुत आराम नाल बहुत वारी पढ़ांगे. ठीक है, तो हाले बस लिख लो, द इलेक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ एन एटम इज नॉट कॉन्स्टेंट. द इलेक्ट्रोनैगेटिविटी ऑफ एन एटम इज नॉट कॉन्स्टेंट. इट कैन चेंज विद ऑक्सीडेशन स्टेट. इट कैन चेंज विद ऑक्सीडेशन स्टेट, कॉमा yes, the and ही लिख लो, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम. ऑक्सीडेशन स्टेट एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द एटम. नोट कर लिया जी इन्ना पार्ट. ठीक है, ये अपना इलेक्ट्रोनैगेटिविटी सीगा. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ एक दो इलेक्ट्रोनैगेटिविटी मेजर करने के तरीके होंगे, वो भी ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ कल वाले ਲੈਕਚਰ 'ਚ ਪੜਾਂਗੇ. ठीक है, एक बार पहला ये वाला ਲੈਕਚਰ अच्छी तरह ਨਾਲ रिवाइज करके पढ़ के ये नोट्स बना लो. बाकी आप कल मिलते हैं. थैंक यू सो मच.